Let me go across to the guest joining us. Rashmi Sawant is an activist, has been a student activist. Aska Khan is also an activist joining us on the show. Atikur Rahman is an Islamic scholar. So Atikur Rahman, let me begin with you. It looks like this could well be a small minority institutions. I'm not sure very clear about its affiliations to the state board or whether it gets any grants or funds by the state government. But in any case, whether you are a minority institution too, is it justified to have even non-Muslim female students wear a hijab? No, not at all, Shivani. Basically, your question is very much pertinent, that if the non-Muslim girls are made to wear forcibly a hijab, meanwhile, it is not a hijab which was come into the forefront as the pictures were shown. It is just a scarf. And no, it's not. What I feel is this story is a week-long story. Since 7-8 days, it went into a lull. Nobody talked about it. And now, at that particular time, Shivani, mind you, the Education Secretary of the MP government had given a clean chit to the school that it's not a hijab, it's a scarf, and all students equally wear it since the beginning of their whatever inception But is. why? Now, after why wear a scarf? No, one second. What is the purpose of the scarf? No, one second. Atikur Rahman, what is the purpose of the scarf? Why wear a scarf? Yeah. Yes, what is the purpose? Tell me, what is the purpose? Is a hindrance to education? No, I'm not getting into that. Why would all girls wear a scarf? How is it different? You can call it a scarf. How is it different to the purpose of a hijab? School not? It's a school uniform, Shivani. Which school uniform, Atikur Rahman, in MP? In MP will have scarf. This is a hot state that is hot, boiling most of the year. It is in India. MP is a part of India. Yeah, so it's a hot weather country and a hot weather state. Exactly which hot weather country has people wearing scarf? Is it forcible? Is it forcible? That obviously the investigation will tell us. The question, is it forcible? That's it. After 7 days, intimidation is done. All Hindutva forces are there in the school now, and they are counting everything. From a pin to everything, they will be counting and blaming that since it's a school, a Muslim school, it should be barred from it. No, I don't think they're asking for the school to be barred, or anybody should ask for that. That's an illogical demand. But the right question to ask here is this: whether this is a hijab or not, and even if it's a scarf, why are these girls wearing this scarf? That is not normal school uniform anywhere. And after this poster went viral, this poster was taken down, that much even I know. I want to go across very quickly to the NCPCR head, Priyank Kanungo, who's joining us, because he's raised some massive allegations against the school. So, Mr. Kanungo, I want to understand from you. The school authorities and others are saying that, there is actually nothing wrong with this because this was just a scarf and all girls are wearing scarf. So why is it that you believe that this was not just not a scarf but a hijab, and also that girls were forcibly being made to wear this? देखिए, हमको बच्चों ने बातचीत में ये बताया है, जो हमारे स्टेट कमीशन के मेंबर्स ने वहाँ इंक्वायरी की है कि उनको हिजाब के बिना क्लास में नहीं आने दिया जाता था। Okay. और स्कार्फ और हिजाब का अंतर देश की जनता समझती है। ये गुमराह करने के लिए स्कार्फ बोलिए, रुमाल बोलिए, दुपट्टा बोलिए, ये चलेगा नहीं। कम से कम एनसीपीसीआर को तो गुमराह नहीं किया जा सकता। हिजाब होता है, सुप्रीम कोर्ट तक का वर्डिक्ट है हिजाब, तो हम समझते हैं हिजाब क्या होता है। सारे बच्चों के हिजाब में फोटोग्राफ्स हैं, एडमिशन रजिस्टर में से फोटोग्राफ्स हमने रिट्रीव किए हैं, हिंदू लड़कियों के फोटो। स्कूल के अंदर मस्जिद जाने का एक गुप्त दरवाजा हमारे स्टेट कमीशन के मेंबर्स को मिला है। इसका क्या मतलब है? इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गुप्त दरवाजा क्यों है और क्या स्टूडेंट्स पे कोई इम्पैक्ट था? ने वहाँ पाया, हमारे स्टेट कमीशन के मेंबर्स ने वहाँ पाया कि एक गोपनीय दरवाजा है जो मस्जिद की तरफ तक जाता है। अब इसको फर्दर पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। भारत का नक्शा जिससे छेड़छाड़ की गई, हमको ये बात बहुत दिन से मालूम है। जो अलगाववादी ताकतें भारत में काम कर रही हैं, वो देश के पूर्वी हिस्से को, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के हिस्से को चिकन नेक से काट देना चाहती है। ठीक वही नक्शा इस स्कूल का लोगो है। तो अलगाववादी ताकतें जिस चीज को उकसा रही हैं, उसी को इस स्कूल के लोगों के माध्यम से बच्चों तक संप्रेषित किया जा रहा है।
इस्लाम में जब किसी को कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रक्रिया में उसको कलमा पढ़वाया जाता है। यहाँ पे हमने हिंदू लड़कियों के वीडियो देखे हैं जिनको कलमा कंठस्थ याद है, तो ये कन्वर्जन नहीं करवा रहा तो और क्या करवा रहा है? ओके मैं आपसे यही एक सवाल ग्रुप पूछने तो वाली थी। मुस्लिम बना रहा आपने है। आपने ये एलिगेशन लगाया है स्कूल के खिलाफ कि यहाँ पे लड़कियों को जबरदस्ती इस्लामिक एजुकेशन दी जा रही थी और कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही थी। आप कह रहे हैं कि आपको इसका एविडेंस मिला है? भाई इस्लाम में कन्वर्ट होने की जो धार्मिक प्रक्रिया है उसमें कलमा ही पढ़ाया जाता है और वहाँ के बच्चों को कलमा कंठस्थ याद है, और कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? ये कन्वर्ट करने के लिए बच्चों को ग्रूम कर रहा था, ये अपराध है बड़ा, और इसमें धर्म स्वातंत्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। भारत के नक्शे में से देश के पूर्वी भाग को काट के दिखाना जो इस्लामिक अलगाववादियों का बहुत पुराना षड्यंत्र है, जिस पर देश में कई आंदोलन हुए और सरकार ने कई बार अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, उस हिस्से को काट के नक्शा बनाना और बच्चों को सिखाना, डार्विन के सिद्धांत के विपरीत मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत बच्चों को सिखाना, बच्चे जो मध्य प्रदेश के हैं, दमोह के हैं, जहाँ मातृभाषा हिंदी है, वहाँ मातृभाषा के रूप में उनको उर्दू पढ़ाना, ये सब अपराध है। और इसके में अपराधियों के खिलाफ अपराधियों की तरह कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। प्रियंक जी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि कुछ लोग ये पूछेंगे कि यहाँ पे ये बच्चे अपनी मर्जी से पढ़ रही होंगी या उनके परिवार की इजाजत से पढ़ रही होंगी, तो अगर ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो वहां पे क्या इनको इस्लामिक एजुकेशन नहीं दी जा सकती या उर्दू नहीं पढ़ाई जा सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं दी जा सकती इस्लामिक एजुकेशन, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 28(3) स्पष्ट करता है कि किसी भी बच्चे को उसके धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म की शिक्षा देने के लिए उसके माता पिता से सहमति लेनी होगी। हमको अपनी जांच में एक भी माता पिता ने आकर ये नहीं बोला कि इस्लामिक शिक्षा देने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल को सहमति प्रदान की है। तो ये तो सीधा सीधा मामला है कि बच्चों को स्कूल के नाम पे बुला के और धर्मांतरित करने के लिए ग्रूम किया जा रहा था। जी, Priyanka Nangu, thanks a lot for speaking to us. You've given us some clarity on what you have found. Let me